Hello everyone. So today we are going to discuss about fundamental rights, all the CUET aspirants. I guess you must be aware about the syllabus and everything around CUET. And today we are going to discuss about the part 3 of our constitution, that is the fundamental rights. So when we talk about fundamental rights, what do you understand by the term fundamental rights? Let's just briefly discuss about it. So fundamental right is the basic human rights that we get in the constitution, right? That is the most common right which we get it, and it is sourced in the constitution. It is given in the constitution itself. Now, there are few things we need to know about the fundamental rights and the constitution itself. First of all, fundamental rights is given under the part 3 of our constitution. When we talk about part, how many parts were there originally in the Indian constitution? That is another question which we need to discuss. Originally, there were how many parts? There were 25 parts when we talk about Indian constitution when it came into picture in 1950. And today we are 22 parts in fact, and today we are with 25 parts, right? Total articles, when we talk about total articles, if we talk about fundamental rights, it is given under Articles 12 till 35. Articles 12 till 35, and from 36 onwards, it is DPSP. Now, 12 till 35, the total number of articles when we talk about in the constitution, it is originally it was 395, and now when we stand in 2026, it is in total 448 articles. In total 448 articles, although you will see the last article has 395 only, but when we include amendments, it also gives other articles as well, and in total we have 448 articles as of now. And originally schedules, when we talk about schedules, originally there were 8 schedules in the constitution, and gradually when we stand in 2026, now we have 12 schedules, right? Now we have 12 schedules. Now moving on, let's talk about the fundamental rights specifically. It is one of the most important aspect of the constitution. See, these fundamental rights are, when we talk about these fundamental rights, these are, you can say, the government can restrict these fundamental rights, the parliament can restrict, the state can restrict these fundamental rights as well. But although these are the basic rights which needs to be given to the citizens as well as non-citizens, and every right which is a fundamental right, it is not necessarily given to all the non-citizens as well. There are only two rights, two fundamental rights which are given, in fact two articles which are given to non-citizens as well. These are Article 14 and Article 21, which is right to equality and right to life and personal liberty. Now, when we talk about, in fact, if you say right to life and personal liberty, it is that right which is available to all the people in the country, whether it is citizen or non-citizen. Now, moving on, when we talk about fundamental rights, it is the basic human right. It is the basic human right which is given in a documented form to all the people in the country. To all the people in the country. So fundamental, what do you understand by the term fundamental? It is a basic right, right? It is something which is basic, which is the core. Now, moving forward, when we talk about fundamental rights, it is given in the Articles 12 till 35, which is the part 3 of the Constitution, which deals with fundamental rights. We know that. These rights incorporate provisions of American Bill of Rights. Now, what do you understand by the term American Bill of Rights? What is American Bill of Rights? So, it represents the American ideology which is related to freedom, personal liberty, minimum interference on part of their government and rule of law. So, minimum interference of government. Minimum interference of government, है ना? So this is very important. You need to understand this, that when we talk about American Bill of Rights, it talks about the ideology, American ideology of freedom and personal liberty, of freedom and personal liberty. अब फ्रीडम और पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहा है. दीज राइट्स इनकॉर्पोरेट प्रोविजंस ऑफ अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स. सी, फंडामेंटल राइट्स की जब आप बात करते हो ना, तो ये एक फ्रीडम देता है, राइट? ये एक फ्रीडम देता है.
और फ्रीडम के साथ साथ एक पर्सनल लिबर्टी देता है, आपको चॉइस देता है दैट यू कैन चूज समथिंग, राइट? आपके पास एक राइट है किसी चीज को चूज करने का, दैट इज पर्सनल लिबर्टी, दैट्स योर राइट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रीडम, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, दैट इज फ्रीडम, राइट? नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू, दैट इज फ्रीडम. नाउ these rights incorporate provisions of American Bill of Rights. अब American Bill of Rights में अब जो अमेरिकन आइडियोलॉजी थी अबाउट फ्रीडम एंड पर्सनल लिबर्टी, वही सेम चीज हमने इनकॉर्पोरेट करी है फंडामेंटल राइट्स में भी. मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, राइट? ऑल्दो इंटरफेरेंस है बट मिनिमम है, ये चीज याद रखना. इंटरफेरेंस है बट मिनिमम इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है. नाउ another important point here is that there is a rule of law, that there is rule of law, there will always be rule of law. means सबसे ऊपर क्या है? इट इज लॉ, उससे ऊपर कुछ नहीं है. ऐसे जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में स्टार्टिंग में जब आप पढ़ोगे, धीरे 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 जब लास्ट में आ जाएगा, वी गिव दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू आवरसेल्व्स. व्हाट डज दैट मीन? मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको अपने से ऊपर रख रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन को हम सब जितने भी लोग हैं हम अपने ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन रख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रिवेल करेगा सब जगह. दैट इज द मीनिंग ऑफ rule of law. Now, when we talk about they promote political democracy, what do you understand by the term political democracy? See, political democracy का मतलब होता है the power is vest in the people, right? लोगों के पास, जो आम जनता है उसके पास पावर वेस्ट होती है, मतलब उसके पास पावर रहती है कि वो किसी को भी चूज कर सकते हैं, राइट? सो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है और प्रिवेंट किस चीज को करता है? अथॉरिटेटिव रूल, या जिसको अथॉरिटेरियन रूल भी बोलते हैं. अथॉरिटेरियन रूल मतलब एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड पावर, किसी एक पर्सन के पास सारी की सारी पावर है, ऐसा नहीं होना चाहिए. यहाँ पावर किसके पास है? सब जनता के पास है, सब लोगों के पास है. सब लोग क्या कर सकते हैं? वोट डालते हैं, राइट? इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, वोट डाला जाता है. आपको जो नेता पसंद है आप उसको वोट डालते हो, नहीं पसंद है उसको आप नहीं डालते हो. दैट इज द सिचुएशन. नाउ अकॉर्डिंगली आपको ये समझना पड़ेगा, दिस इज व्हाट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज. हर किसी के पास पावर डिवाइडेड है, जनता के पास भी पावर है, एंड सबसे ज्यादा पावर जनता के पास है. 5 साल बाद अगर कोई नहीं पसंद आ रहा है या अच्छा काम नहीं कर रहा है कि यार ये तो बेकार काम कर रहा है, तो इसको आप हटा सकते हो. दैट इज टोटली अप टू यू. एंड नेक्स्ट इज अथॉरिटेटिव रूल. अथॉरिटेटिव रूल में क्या होता है? इट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड पावर. एक ही जगह पर सारी की सारी पावर आपने दे रखी है, इसी के पास सारी पावर है, राइट? जैसे राजा महाराजा का रूल होता था कि भाई सारी पावर किसके पास है? राजा महाराजा के पास, राइट? नाउ फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट राइट्स. वी नो दैट. मतलब अगर किसी के पास कोई भी लीगल राइट है, या लेट सपोज मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे ऊपर मेरा उसके ऊपर मालिकाना हक है, मैं उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता हूं, उस प्रॉपर्टी को बेच सकता हूं, ये सब मेरा राइट है, मैं उस प्रॉपर्टी को पोजेस कर सकता हूं. दैट इज माई प्राइवेट राइट. नाउ क्या उसको कोई और आके अगर कब्जा करता है, क्या मैं उसको हटा नहीं सकता? बिल्कुल हटा सकता हूं. दैट इज माई प्राइवेट राइट. नाउ मैं उसका ओनर हूं. ये सभी के लिए क्या है? सभी को पता है इस चीज का कि मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर हूं, एंड दे ऑल आर प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, राइट? अनलॉफुली, इनफैक्ट यस, अनलॉफुली उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई और नहीं आ सकता. दिस इज द पब्लिक राइट. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो फंडामेंटल राइट्स है आर एसेंशियल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट राइट्स. दोनों राइट्स को प्रिजर्व करके रखता है फंडामेंटल राइट्स. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, दीज इंपोज नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट. कि स्टेट जो है फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए सारे लॉज बनाएगा. अगर किसी का राइट टू लाइफ हार्म हो रहा है इस पर्टिकुलर लॉ से, तो वो लॉ नहीं बनाया जा सकता, राइट? तो it puts a negative obligation on the state not to encroach on individual liberty. मतलब किसी का कोई फंडामेंटल राइट है तो आप उस फंडामेंटल राइट को हार्म करके एक कोई लॉ नहीं बना सकते, बिकॉज माना जाएगा कि आपने एनक्रोच किया. सी एनक्रोच करना मतलब क्या होता है? एक्सेसिव पावर यूटिलाइज करना. जो आपके पास नहीं थी उस पावर को आप मिस यूज कर रहे हो, उस पावर को आप यूटिलाइज कर रहे हो, विच इज नॉट देयर, राइट? मतलब मेरे पास अगर मान लो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट जज है, वो क्या नहीं कर सकता? हाई कोर्ट के पनिशमेंट नहीं दे सकता. फॉर एग्जांपल डेथ पेनल्टी नहीं दे सकता. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे सकते हैं. अब डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो डेथ पेनल्टी नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी दे रहा है. दैट मीन्स ही हैज एनक्रोच्ड हिज पावर.
अब यहीं पर ये चीज भी लिखी है, तो स्टेट के ऊपर नेगेटिव ऑब्लिगेशन लगाया जाता है किस चीज का, कि वो एनक्रोच नहीं कर सकते ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी। मतलब किसी का कोई पर्सनल राइट है, किसी का कोई पर्सनल फंडामेंटल राइट है, इंडिविजुअल राइट है, तो आप उसमें जाके आप लॉ नहीं बना सकते इन इट्स वेरियस डायमेंशंस। These are essential for an individual for his full intellectual, moral and spiritual development। मतलब किसी भी इंडिविजुअल के मॉरल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है फंडामेंटल राइट। दे कैन नॉट बी ऑल्टर्ड एक्सेप्ट फॉर द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, इन जनरल जो कोर है फंडामेंटल राइट का, जिसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, मतलब आप उसको क्या नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है, आप फंडामेंटल राइट्स के, जैसे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15 की बात कर लेते हैं, राइट, आर्टिकल 15 की बात कर लेते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब चीजें दे रखी हैं उसके अंदर। अब यहां पर क्या आप डिस्क्रिमिनेशन को आप पॉजिटिवली कर सकते हो, वेदर यू कैन डिस्क्रिमिनेट पीपल पॉजिटिवली, आंसर इज यस, यू कैन। आप यहां पर किसी को इक्वालिटी नहीं दे रहे हो, इक्वालिटी नहीं दे रहे हो, फिर भी वो चल रहा है, जैसे कि रिजर्वेशन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, बिकॉज इट इज डूइंग इक्विटी। जिसको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से आप उसको चीजें दे रहे हो, तो यहां पर इक्विटी हो रही है और आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, राइट। सो यहां पर भी वही चीज, दे कैन नॉट बी ऑल्टर्ड एक्सेप्ट फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में करिए। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज फंडामेंटल राइट्स अंडर 7 ग्रुप्स, पहले 7 ग्रुप में डिवाइडेड था। एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स, as right to property has been eliminated from the list by 44th Amendment Act 1978। So right to property जो था वो अब eliminate हो गया है, पहले आया करता था। Fundamental rights are available only with citizens are as under 15, 16, 19, 21 and 30, right? ये सारे rights, fundamental rights जो है citizens को available है। आर्टिकल 12 पे आते हैं, देखो फटाफट से। आर्टिकल 12 जो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है। स्टेट कौन है? अब ये गवर्नमेंट भी हो सकता है, गवर्नमेंट की कोई बॉडी भी हो सकती है, राइट, जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। आर्टिकल 12 प्रोवाइड्स फॉर डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट्स इंक्लूड गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, और लोकल और अदर अथॉरिटीज, जैसे म्युनिसिपल अथॉरिटीज, एमसीडी होती है, राइट, जहाँ की भी मतलब एमसीडी हो गई, जैसे ये दिल्ली की हो गई, राइट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ऐसे और भी हर जगह पर होती है लोकल अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और लोकल और अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 13 पे आते हैं, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 कन्फर्स, सी जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू बेसिकली बात करता है, जुडिशरी जब रिव्यू करती है किसी लॉ को, ये पावर जुडिशरी के पास हमेशा रहती ही रहती है। ये पावर जुडिशरी के पास हमेशा रहती ही रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया जिसका मिसयूज करके उन्होंने कुछ और काम करने हैं, राइट, तो इस चीज के ऊपर जुडिशरी हमेशा से एक कंट्रोल बनाए रखती है, उसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। किसी भी लॉ को जुडिशरी जो है अमेंड कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, बता सकती है कि भाई इस लॉ को आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हम लोग इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहे हैं। रीजन भी होता है उसका, डेफिनेटली, बिना रीजन के ऑब्वियसली नहीं करेगी जुडिशरी, बट जुडिशरी के पास इनफैक्ट इतनी पावर है कि कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट ने पास किया है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। बट माइंड यू, it is done only when that law made by the parliament is on the misuse, right, is on the misuse, या फिर किसी लॉ के कॉन्ट्रडिक्शन में है जो लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था एंड दैट वाज अ बेटर लॉ, तो इस वजह से उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। नाउ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू द कोर्ट्स ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव एक्ट्स, मतलब लेजिस्लेटिव एक्ट्स का मतलब क्या होता है? मेकिंग लॉ। तो जो भी लॉ पार्लियामेंट बना रही है उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू का पावर एक्सरसाइज किया जा सकता है। दिस पावर हैज बीन conferred on the Supreme Court of India and the High Courts of the states, Article 32 and 226 respectively। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के अंदर एंड हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के अंदर, है ना, respectively, to declare law unconstitutional if it is inconsistent with any of the provisions of part 3 of the constitution। Also, कब unconstitutional declare कर सकती है? जब
पार्ट 3 मतलब कि फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर कर रहा है कोई भी लॉ या वायलेट कर रहा है कोई भी लॉ, तब जुडिशरी क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है किसी भी लॉ को। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट टू इक्वालिटी पे आते हैं। आर्टिकल 14 से 18 तक दे रखा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर सा मीनिंग है, ऑलमोस्ट, बट डिफरेंस क्या है? सबसे पहली चीज ये समझो, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब एक लॉ है, इसमें जो भी लोग दे रखे हैं, जिनका भी मेंशन है, ये सब लोग इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मतलब जितने हमारे लॉज बने हुए हैं, जितने भी लॉज बने हैं, उन सब लॉज में जितनी भी प्रोटेक्शन दी जा रही है वो सबको बराबर दी जाएगी। देखो, एक है कि आप मेंशन कर रहे हो पहले से ही लोगों को, और उसमें आपने इक्वल जो है इक्वली डिवाइड किया है, राइट? इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ की नजरों में सब लोग सामने हैं, समान है, सॉरी, लॉ की नजरों में सब लोग सामान्य हैं, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मतलब लॉ जो है कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी को भी प्रोटेक्ट करने में, किसी भी इंसान को प्रोटेक्ट करने में, राइट? किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अगर कोई भी, लेट सपोज एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेता है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबको उस लॉ के अंडर सेम ट्रीट किया जाएगा, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ। आगे लिखा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, वो उस लॉ के अंडर जाके अपने लिए प्रोटेक्शन ले सकता है, अपने लिए प्रोटेक्शन ले सकता है, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, दिस इज आर्टिकल 15। तो प्रोहिबिट, कोई भी ऐसा लॉ बनाया जाता है जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है बिटवीन मतलब किसी भी रिलीजन से रिलेटेड, किसी भी रेस से रिलेटेड, किसी भी कास्ट से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड या प्लेस ऑफ बर्थ से रिलेटेड, तो अगर वो लॉ जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कौन करेगा? इट इज द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 एंड 226। नाउ बट इसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है अलाउ कर दिया गया है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जैसे रिजर्वेशन, एग्जाम्पल रिजर्वेशन है ना, रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं अपन, राइट? तो रिजर्वेशन जो है अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेशन ही तो कर रहे हैं, बट दैट इज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज इट डज इक्विटी। वो क्या करता है? इक्विटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जरूरत है इसलिए हम क्या कर रहे हैं? रिजर्वेशन दे रहे हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अगेन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, राइट? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब जो भी सरकारी नौकरी होती है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस मतलब अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया जाएगा, रोक दिया जाएगा, एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, अगर कहीं पर होता भी है तो उसको हम प्रोहिबिट करेंगे। नेक्स्ट देखो, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, टाइटल मतलब क्या होता है? जो पहले राजा महाराजा लगाते थे, राव स्टार्टिंग में नाम के आगे जो लगाते हैं ना लोग, दैट इज नोन एज टाइटल, ठीक है? तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। एकेडमिक और मिलिट्री में आप लगा सकते हो, जैसे लेफ्टिनेंट लगाते हैं, है ना, मेजर जनरल लगाते हैं, ये सब चीज़ें लगाई जा सकती है। जैसे प्रोफेसर लगा देते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लगा देते हैं, राइट? ये सब चीज़ें लगा सकते हो आप एकेडमिक और मिलिट्री फॉर्म में। राइट टू फ्रीडम पे आते हैं, 19 से 22 की बात करता है राइट टू फ्रीडम। प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। सी, आपके पास पूरी की पूरी फ्रीडम है कुछ भी बोलने की, कुछ भी एक्सप्रेस करने की, हर तरीके की आपके पास फ्रीडम है। ऑल्दो माइंड यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हर एक फंडामेंटल राइट जो है रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है, रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है हर एक फंडामेंटल राइट पे, ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हर एक फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। क्या आप कुछ भी आके बोल दोगे इंटरनेट पे? जैसे अभी आपने लास्ट ईयर केस देखा होगा समय रैना का,
राइट वो एक शो चलाता था इनफैक्ट, इंडियाज गॉट टैलेंट, अब तो शायद बंद हो गया है। और अगर आया भी आगे इन फ्यूचर, तो वहां पर क्या आप स्पीच और एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी आकर जो है इंटरनेट पर बोल दोगे, तो कितना ज्यादा रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है उसको, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस की थी अराउंड दिस केस, राइट। नाउ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, कि आप कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हो, दैट इज योर फ्रीडम। एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, आप कहीं पर ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी मूव कर सकते हो। रेसिडेंस मतलब किसी भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी रह सकते हो। प्रोफेशन, किसी भी तरीके का आप प्रोफेशन कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, जैसे इसके अंदर एक राइट अगर मैं आपको बताऊं जिसको बोलते हैं हम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेट सपोज किसी भी अक्यूज को अगर लेट सपोज अरेस्ट कर लिया गया, अब अरेस्ट हो जाने के बाद आप क्या उससे जबरदस्ती कन्फेशन निकलवा सकते हो? अगर उससे पूछा जाए कि आपने क्या मर्डर किया है, वो बोलता है कि नहीं, अगर वो मना कर रहा है, दैट मीन्स ही कैन डू दैट, राइट, ही हैव दैट राइट। आप उससे जबरदस्ती कन्फेस नहीं करा सकते कि भाई तुझे तो ये स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा कि तूने मर्डर किया है, भले ही उसने किया हो। आई एम नॉट सेइंग दैट, भले ही उसने किया हो, लेकिन फिर भी ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू गिव हिज कन्फेशन वेयर ही इज हेल्ड गिल्टी ऑन हिज ओन। मतलब वो अपना गिल्ट खुद से कबूल करने के लिए जबरदस्ती उसको आप एंटाइटल नहीं कर सकते, राइट। नाउ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज इसका अम्ब्रेला जो है बहुत बड़ा है। इसके अंदर सभी लोग आ जा सभी तरीके के राइट्स आ जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर राइट टू प्राइवेसी, ये भी आ जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी आ जाता है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ये भी आ जाता है, राइट टू स्लीप भी इनफैक्ट आ सकता है, राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये भी इसका पार्ट है। तो ये सारी चीजें जब हम बात करते हैं इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर फॉल करती हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नाउ इज दैट क्लियर एवरीवन? मूविंग ऑन, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये नया ऐड हुआ था, राइट, आई गेस 1986 में, not in 1986, in fact I guess 86th amendment act से ऐड हुआ था। now protection against arrest and detention in certain cases, article 22। next right against exploitation, article 23 और 24 बात करता है prohibition of traffic in human beings and forced labor, कि किसी को जबरदस्ती जो है आप लेबर नहीं बना सकते, फोर्स्ड लेबर नहीं बना सकते, एज वेल एज अगर कोई पर्सन ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है उसके लिए भी वो लाइबल होगा। सो प्रोहिबिशन होना चाहिए ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा, तो कोई भी चाइल्ड को जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, कहां पर? फैक्ट्रीज एंड ऐसे एरिया में, ऐसी जगह पर जहां पर इनफैक्ट आप ये बोल सकते हो जहां पर जान जाने का ज्यादा खतरा है, राइट, विच इज सच एनवायरमेंट जहां पर आप उसमें टॉक्सिक फ्यूम्स जो है बहुत इजीली आ जाते हैं, तो उस जगह पर आप क्या करते हो? उनको अवॉइड करते हो एम्प्लॉयमेंट देने से। सो प्रोहिबिट करना भी चाहिए, ये हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कंसर्न्स एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, कि आप अपना रिलीजन जो है फ्रीली प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपगेट कर सकते हो, राइट, बट दिस इज what is being misused by lot of people, this is being misused by lot of people। प्रोपगेशन के नाम पर कन्वर्जन भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए फ्रीडम तो है डेफिनेटली, क्या उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है? आंसर इज यस, ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। नेक्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, तो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो भी टैक्सेस रिसीव हो रहे हैं गवर्नमेंट को, तो किसी भी रिलीजन को स्पेसिफिकली प्रमोट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी बात की गई है यहां पे। नेक्स्ट देखो, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स,
कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात कर रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटीज हैं उनके लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। दैट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, दैट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। नाउ राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि जो अगर माइनॉरिटीज हैं वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज एग्जाम्पल फॉर दैट, राइट, जामिया मिलिया इस्लामिया इज एग्जाम्पल फॉर दैट, राइट। तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये लोग एस्टैब्लिश, माइनॉरिटीज जितने भी हैं ये लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं एंड एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, मेंडमस, प्रोहिबिशन, सर्चरारी एंड को वारंटो, राइट, को वारंटो। फंडामेंटल राइट्स ऑफ फॉरेनर्स भी देख लेते हैं क्या क्या है। देखो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजंस एंड नॉट टू फॉरेनर्स, सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल। कौन कौन से? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, आर्टिकल 15 पढ़ा था अपन ने। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सी कोई भी एक नॉर्मल सी बात है, खुद सोचना इस चीज को। जैसे मान लो कोई भी फॉरेनर है, कोई भी नॉन सिटीजन है, क्या आप उसको प्रधानमंत्री बना सकते हो? क्या आप उसको आईएएस ऑफिसर बना सकते हो? आंसर इज नो। भाई अगर वो इंडिया का सिटीजन ही नहीं है तो वो आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकता है, प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बन सकता है? तो मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है, जो गवर्नमेंट की नौकरियां होती हैं उसके अंडर आप उसको नौकरी नहीं दे सकते। ही इज बीइंग प्रोहिबिटेड टू एंटर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नाउ protection of 6 rights regarding freedom of speech and expression, assembly, association, movement, residence and profession, right? Protection of life and personal liberty. Next, right of minorities to establish, administer educational institution. Now fundamental rights available to both citizens and foreigner कौन कौन सी हैं? Equality before law and equal protection of law, very nice. Protection in respect of कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये भी सबके पास अवेलेबल होती है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी सबके पास अवेलेबल है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी सबके पास अवेलेबल है। नाउ दीज आर अनदर इंपॉर्टेंट राइट्स जो सबके पास अवेलेबल होती हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, राइट, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, freedom from payment of taxes for promotion of any religion. Next is freedom from attending religious instruction or worship in certain educational institution. Next पे आते हैं, देखो रिट के टाइप्स एक बार पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी रिट्स होती है हमारे पास। नाउ ये रिट्स जो है सभी के पास, मतलब दोनों कोर्ट्स के पास अवेलेबल होती है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, दोनों के पास अवेलेबल होती हैं ये रिट्स। सबसे पहले इट इज लैटिन टर्म हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब क्या होता है? देखो, ब्रिंग द बॉडी। एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। एक सिंपल सी बात है, जैसे लेट सपोज किसी पर्सन की डेथ हो गई, राइट, ए ने बी का मर्डर कर लिया है, ऐसा समझ के चलो, ए ने बी का मर्डर किया है। अब मर्डर हो जाने के बाद जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, बहुत कुछ चीजें होती हैं। नो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप पता लगाने की कोशिश करते हो कि कैसे मर्डर हुआ है, क्या रीजन रहा होगा मर्डर का, या फिर किसने किया है, ये सारी चीजें आप उससे पता लगाने की कोशिश करते हो। तो एक लॉन्गर प्रोसेस होता है। अब होगा क्या, जिसका मर्डर हुआ है उसकी जो फैमिली है उसको चाहिए होता है कि हमारा जो जिस पर्सन की डेथ हुई है उसका हम अंतिम संस्कार करें, राइट, लास्ट राइट्स जिसको बोलते हैं, राइट, जिसको हम बोलते हैं लास्ट राइट्स जो है हमें परफॉर्म करने हैं, जो एक एक्चुअल में फंडामेंटल राइट भी है। राइट टू डाई विद डिग्निटी, राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये भी समझना जरूरी है, ठीक है। अब एक चीज समझना, एक तरफ उसका राइट टू डाई विद डिग्निटी है और दूसरी तरफ पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस कैसे पता लगाएगी कि मर्डर हुआ क्यों है, और धीरे धीरे जब पता चलता है कि क्यों हुआ है तो ये भी पता चलता है कि किसने किया हो सकता है, राइट। ये सारी चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कनेक्टेड है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए आपको चाहिए होती है बॉडी। अब क्या किया जाए कि बॉडी नहीं मिल रही है क्योंकि पुलिस ने मना कर दिया है अभी, तो
जो फैमिली है, जो रिलेटिव्स हैं, वो क्या करते हैं, वो रिट लगाते हैं ऑफ हेबियस कॉर्पस, जिसको हम बोलते हैं ब्रिंग द बॉडी. अब इज अ लैटिन टर्म विच मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ. It is an order issued by the court to a person who has detained another person or to produce the body of the latter before it. Also, एक और चीज समझो, मान लो किसी भी पर्सन को एक नॉर्मल एक सस्पेक्ट है, ठीक है, प्राइम सस्पेक्ट कोई और था, बट वो भी एक सस्पेक्ट था कि हाँ इसको इसने भी हो सकता है मर्डर किया हो. या फिर पुलिस वाले कई बार करते हैं कि भाई ये अब मतलब यार देखो, पुलिस के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि उनको इन्वेस्टिगेशन जल्दी कंप्लीट करके चार्जशीट जो है फाइल करनी होती है विद इन 90 डेज, जनरली ये टाइम होता है. अब होता क्या है कि पुलिस के ऊपर जो प्रेशर होता है उसकी वजह से वो कई बार किसी ऐसे लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं जो एक्चुअल में जिसने क्राइम नहीं किया. अब उसको पकड़ने के बाद वो टॉर्चर करते हैं, थोड़ा सा मारपीट करते हैं, तो वो कई बार क्या करता है, वो कबूल कर लेता है कि हाँ यार मैंने ही चलो क्राइम किया है. लेकिन होता क्या है, जो उसकी फैमिली है, जो उस पर्सन की फैमिली है, वो पर्सन की फैमिली जो है अप्लाई करती है कोर्ट में कि हमारे बच्चे ने कुछ नहीं किया है, आप प्लीज हमें वापस कर दीजिए इसको. तो उसको हम बोलते हैं हेबियस कॉर्पस. द कोर्ट देन एग्जामिन्स द कॉज एंड लीगैलिटी ऑफ द डिटेंशन. इट वुड सेट द डिटेन्ड पर्सन फ्री इफ द डिटेंशन इज फाउंड टू बी इलीगल. राइट, कि जबरदस्ती अगर पुलिस वालों ने किडनैप करके रखा है तो पुलिस वालों को जो है अगर बोला जाएगा कि आपने इसको इलीगली रखा हुआ है एंड आप इसको छोड़ दीजिए. दस दिस रिट इज अ बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन. की जबरदस्ती अगर किसी को पकड़ा है तो ये रिट जो है ये इंडिविजुअल लिबर्टी का बुलवर्क की तरह काम करती है. द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स. मतलब जबरदस्ती अगर किसी को कोई कब्जा किसी को कोई पकड़ के घर में रख ले, राइट, जैसे किडनैप करके रख लिया है, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी आप ये रिट लगा सकते हो. ठीक है. मैंडेमस, मैंडेमस मतलब होता है वी कमांड. It is a command issued by the court to a public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform. जैसे कोई भी मान लो एफआईआर लॉन्च करने गया, कोई भी पर्सन एफआईआर लॉन्च करने गया, अब वो एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा है पुलिस वाला, तो इस पर्सन के पास क्या राइट है, वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा या किसी के पास भी जाएगा. अब मजिस्ट्रेट तो रेट इशू नहीं कर सकता, लेकिन रेट इशू करने की पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास. एट द एंड अगर मजिस्ट्रेट भी जो है मना कर देता है कि यार तुम तो रहने दो, ये इसमें एफआईआर नहीं बनती है ना इसमें कंप्लेंट बनती है, तो हम तो रिफ्यूज कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब वो जाएगा रिट ऑफ मैंडेमस लगाने, एंड रिट ऑफ मैंडेमस जब वो लगाएगा तो कोर्ट उससे पूछेगा आप मुझे रीजंस दीजिए, वो रीजन बताएगा. फिर उसके बाद कोर्ट अगर मैंडेमस इशू करता है तो कोर्ट जितने भी पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनको बोलेगा कि भाई साहब आप इस पर्टिकुलर कंप्लेंट को दर्ज कीजिए या फिर आप इस एफआईआर को दर्ज कीजिए. राइट, बिकॉज it means we command. It is a command issued by the court to a public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform. It can be issued against any public body or corporation, an inferior court, a tribunal or government for the same purpose. Right? Inferior court मतलब magistrate भी उसके अंदर आ सकता है. The writ of mandamus cannot be issued. कब issue नहीं हो सकती? Against a private individual to enforce departmental instruction when the duty is discretionary and not mandatory, to enforce a contractual obligation against the President of India or state governors and against the Chief Justice of a High Court acting in judicial capacity. Writ of prohibition पे देखते हैं क्या होता है. It means to forbid. It is issued by a higher court to a lower court or tribunal. देखो, higher court to lower court or to a tribunal to prevent the latter from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that it does not possess. Thus, unlike mandamus that directs activity, the prohibition directs inactivity. देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है. यहां पर बोल रहा है, जब मैंडेमस की बात करी थी वो डायरेक्ट करता है कि एक्टिविटी करनी है, आप मना क्यों कर रहे हो, इसको करो. लेकिन यहां पर क्या है, इनएक्टिविटी करना, मतलब आपने जो किया है वो गलत है, आप इसको रोक दीजिए. दिस इज प्रोहिबिशन. राइट, रिट ऑफ प्रोहिबिशन. तो इशू कौन करता है, हायर कोर्ट इशू करता है टू अ लोअर कोर्ट और टू द ट्राइब्यूनल. राइट, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज. क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज में ट्राइब्यूनल्स आते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स ट्राइब्यूनल, जैसे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल,
NCLT, ठीक है, ये सब आते हैं इसके अंदर. It is available against administrative authorities. It is not available against administrative authorities, legislative bodies and private individuals or bodies. Certiorari का मतलब क्या होता है? It means to be certified, to be informed. It is issued by a higher court to a lower court or tribunal, either to transfer a case pending with the letter to itself or to quash the order of the letter in a case. तो या तो आप अपना केस ट्रांसफर कर दो हमारे पास, या फिर जो आपने पास किया है ऑर्डर उसको आप क्वाश कर दो. हम लोग क्वाश कर रहे हैं इनफैक्ट. नेक्स्ट इज इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस ज्यूरिसडिक्शन और लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और एरर ऑफ लॉ. कि आपने लॉ जो है सही से नहीं समझा, या आपके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, और अगर आपके पास ज्यूरिसडिक्शन था तो आपने उससे ज्यादा ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर लिया है. इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आपने जो डिसीजन दिया है उसको हम क्वाश कर रहे हैं. Thus, unlike prohibition, which is only preventive, certiorari is both preventive as well as curative. तो prohibition में क्या है, आप मना कर देते हो कि ये तो नहीं होगा. certiorari में क्या है, आप मना भी कर रहे हो as well as आप ये भी बोल रहे हो कि हम लोग इस केस को ले लेते हैं, हम डिसाइड करेंगे. ठीक है. Previously, the writ of certiorari could be issued only against judicial and quasi-judicial authorities and not against administrative authorities. However, in 1991, the Supreme Court ruled that the certiorari can be issued even against administrative authorities affecting the rights of individuals. तो पहले 1991 से पहले ये सिर्फ जुडिशियल अथॉरिटीज के ऊपर और ट्राइब्यूनल्स के ऊपर ही लगता था, लेकिन अब 1991 के बाद से ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पर भी लागू होता है. लाइक प्रोहिबिशन, certiorari is also not available against legislative bodies and private individuals or bodies. को वारंटो क्या है? इट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट. क्या आपने ये जो काम किया है, क्या अथॉरिटी थी आपके पास ये काम करने की, राइट? बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू लीगैलिटी ऑफ क्लेम अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस, हेंस इट प्रिवेंट्स इलीगल usurpation of public office by a person. The writ can be issued only in case of a substantive public office of a permanent character created by a statute or by the constitution. It cannot be issued in cases of ministerial office or private office. Unlike other four writs, this can be sought by any interested person and not necessarily by aggrieved person. तो इसको कोई भी जो है इशू करवा सकता है, जरूरी नहीं है कि वही पर्सन हो जो इस पर्टिकुलर चीज से गुजर रहा है, राइट? सो बेसिकली देखो, इसमें क्वेश्चन किया जाता है, इसमें क्वेश्चन करता है कोर्ट कि आपने किस अथॉरिटी से ये काम किया है, दैट्स इट, राइट? द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस. ठीक है. अब प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, ये एक बार देख लेते हैं. ओरिजिनली the right to property was one of the 7 fundamental rights, and under part 3 of the constitution it was dealt by article 19(1)(f) and article 31. अब इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है. The 44th Amendment Act of 1978 abolished the right to property as fundamental right. देखो, right to property अभी भी है, right, but वो fundamental right नहीं है. Abolished the right to property as a fundamental right by repealing Article 19(1)(f) and Article 31 from Part 3. Instead, the Act inserted a new article, that is Article 300A, in Part 12 under the heading Right to Property. It provides that no person shall be deprived of his property except by authority of law. तो लॉ की अथॉरिटी जो है वो डिप्राइव कर सकती है किसी को किसी की प्रॉपर्टी से. मतलब अगर लगता है कोर्ट को या फिर किसी भी अथॉरिटी को कि ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर सकती है उसको. कोई और इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं कर सकता है, बट कौन? अथॉरिटी ऑफ लॉ. Thus, the right to property still remains a legal right or a constitutional right, though no longer a fundamental right. It is not part of the basic structure of the constitution. So, आज की डेट में it is not part of the basic structure of the constitution. ठीक है, समझ आया? Thank you so much. So that is it from my side. I hope you understand, you got to know the meaning of the whole session. We discussed about the fundamental rights in short. Thank you everyone. We'll see you in the next session.